Hello dear students, welcome to my channel Techify Physics, the online learning center for learning physics. Now, before moving into this video, I would like to request all of you that please subscribe my channel, please like my videos and do share with your friends. And the topic for today's discussion is distance and displacement. So before moving into this topic, distance and displacement, I would like to request all of you, please watch my previous videos that is describing motion and physical quantities. The video which is named as physical quantities and units is very important for your syllabus. So मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो वीडियो को एक बार आप रिव्यू करें एंड उसके बाद ही इस वीडियो पे आए. साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बिफोर मूविंग इनटू दिस वीडियो, I would like to request all of you that while watching this video, please have pauses in between. बीच में पॉज देते रहें, फैक्ट्स को समझें और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ें. So let us see what is distance and what is displacement. So first of all, let us see what is distance. So the definition of distance goes like this. When a body is in motion, the length of the path traveled by the body is called distance. What is the meaning of the length of the path? Whenever a body is moving, it must be moving in a definite path. So what is distance? The length of the path on which the body is moving is nothing but called as distance. So this means when a body is at rest, the distance covered is 0. So what is the meaning of this? कभी भी अगर body move नहीं कर रहा है, इसका मतलब body is at rest. When the body is at rest, that simply means it is not moving. And when it is not moving, it has not covered any path. While it has not covered any path, that means the length of the path will be 0. So the length of the path is 0, that means the distance covered will also be equal to 0. So distance क्या है? Distance जो भी path body follow कर रही है उस path का जो length है, that path is called distance. Distance is basically length, and as we saw in the previous video, that is physical quantities and units, the link of that video is in the description. इस वीडियो का से जो पिछला वीडियो है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच द वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी. एंड as we know that length is a scalar quantity, so that means distance is basically length, that means distance will also be a scalar quantity. The SI unit of distance is meters and the CGS unit is centimeters. What is SI and what is CGS unit? Again, I would like to request all of you, please go through the description box, and in the description area you will find the link of the video physical quantities and units. In that you will find what are units, what are SI unit and what are CGS units. So the SI unit of distance is meters and the CGS unit is centimeters. And since distance is a scalar quantity, its value can be 0 or positive. Distance 0 कब होता है? Whenever a body is not moving, the distance of the body is 0. And since distance is a scalar quantity का मतलब ये हुआ कि distance के ऊपर change in direction का कोई effect नहीं होता है. जब भी आप direction change करते हो from A to B या फिर B to A, the distance between A to B or B to A does not change. Why it does not change? Because it doesn't have any effect of direction. When it does not have any effect of direction, this means that distance is always and always positive. इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि सपोज करते हैं the distance between your home and your school, आपके घर से आपके स्कूल की दूरी है 30 किलोमीटर्स. 30 किलोमीटर is your distance. So if I say the distance between your home and your school is minus 30 किलोमीटर, तो ये गलत रहेगा. वाई माइनस 30 किलोमीटर गलत रहेगा? बिकॉज माइनस 30 किलोमीटर का मतलब है वहां पर माइनस साइन आपको ये डेजिग्नेट कर रहा है कि इट हैज सम इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन. सो वहां पर माइनस 30 किलोमीटर अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं वहां पर, नॉट डिस्टेंस. व्हाट इज बेसिकली डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ. दैट मीन्स इट विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव वैल्यू. दैट मीन्स इफ यू से the distance between your home and your house is 30 kilometer, that means that it's positive 30 kilometer. Negative नहीं हो सकता. That means distance की तरह जितनी भी vector quantities है, they cannot have negative values. So that means distance also will not have any negative value. Distance is always positive. Now let us see how to calculate the distance. To calculate total distance traveled by a body, the lengths of the path are added. जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, the lengths of the path are added.
इसका सिंपल सा मीनिंग देखते हैं हम. सपोज करते हैं, लेट अस सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट ए अ बॉडी इज मूविंग टू पॉइंट बी. The body is moving to point B and suppose the distance covered is 10 meter, suppose 10 meter. From point B the body is moving up to point C and the distance between B to C is 5 meter. The distance between B to C is 5 meter. You have to find the total distance traveled. So how we can find the total distance traveled? Total distance find out करने के लिए आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, जो पाथ बॉडी फॉलो किया है उन पाथ्स के लेंथ्स को आप क्या करोगे, सिंपली ऐड कर दोगे. जो भी पाथ लेंथ है उसको क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे. तो पाथ क्या है यहां पर, पहला पाथ है ए टू बी 10 मीटर, दूसरा पाथ है बी टू सी 5 मीटर. सो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना हो गया, 10 मीटर प्लस 5 मीटर विच इज इक्वल टू 15 मीटर. दिस इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सो ये जो पॉइंट यहां पर मेंशन्ड है, यहां पर इस पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग यही है कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, सिंपली आपको क्या करना है, आपको वहां पर पाथ के लेंथ को क्या करना है, ऐड कर देना है. सिंपली ऐड द लेंथ ऑफ द पाथ. अब ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि बॉडी एक क्लोज्ड पाथ में ट्रेवल कर रहा है. बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ क्लोज्ड पाथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड पाथ? क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है बॉडी एक ऐसे पाथ में ट्रेवल कर रही है जिसका शेप एक ज्योमेट्रिकल शेप है. ज्योमेट्रिकल शेप मीन्स इट कैन बी अ रेक्टेंगल, इट कैन बी अ स्क्वायर, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम, इट कैन बी अ ट्राइंगल, इट कैन बी सर्कल, एनी ज्योमेट्रिकल फिगर. So in any geometrical figure, whenever you have to find the distance traveled by the body in one complete round, so what you have to do, you have to simply find the perimeter. Simply आपको क्या करना है, उसका perimeter निकाल देना है. Perimeter निकालने का मतलब क्या है? Perimeter निकालने का मतलब ये है कि you are finding the length of the total path traveled. Example के तौर पर देखते हैं कि suppose the body is traveling in a circular path. बॉडी कहाँ ट्रैवल कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है. बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, इन दैट केस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन वन कंप्लीट राउंड विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू 2 पाई आर. पेरीमीटर ऑफ सर्कल का मतलब होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर. सो व्हेनेवर बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करती हुई बॉडी अगर एक राउंड कंप्लीट करती है, व्हेन इट कंप्लीट्स वन राउंड, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उस बॉडी ने, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. अज्यूम करते हैं बॉडी एक ट्राइंगुलर पाथ में चल रही है. When the body is moving in a triangular path और एक राउंड कंप्लीट कर रही है, एक राउंड कंप्लीट कर रही है, in that case the distance traveled by the body in one complete round perimeter of triangle. Very simple. Now suppose the body is moving in a square or in a rectangle or in a parallelogram, then what we will do, again we will find the perimeter. Suppose if it is moving in a square, distance covered by the body in one complete round equal to the perimeter of square. Perimeter of square का फॉर्मूला आपको सबको पता है, 4 into side. And if it is moving in a rectangular path, अगर एक rectangular path में वो move कर रहा है, that means the distance traveled by the body in one complete round is equal to the perimeter of rectangle, that is 2 into length plus breadth. That means कोई भी closed figure का मतलब है कोई भी geometrical shape वाला figure. So any geometrical shape वाले फिगर में distance traveled in one complete round is nothing but equal to the perimeter of the path. यही conclusion बैठता है यहाँ पर. So the distance traveled by the body in a closed path in one complete round will be equal to the perimeter of the path. I want आप ये चीज नोट कर लीजिए, ये फैक्ट नोट कर लीजिए, बिकॉज ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा. Next is displacement. What is the definition of displacement? Let us see. The definition of displacement is something like this: the length of the shortest path covered by an object during its motion from its starting point is called displacement. What is displacement? Displacement is the length of the shortest path.
डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, बट इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ. डिस्टेंस, इट वॉज द लेंथ ऑफ द पाथ, सिंपली द लेंथ ऑफ द पाथ. कोई भी पाथ में अगर बॉडी चल रही है उसका टोटल लेंथ डिस्टेंस के बराबर था. बट डिस्प्लेसमेंट उन सारे पाथ में से जो सबसे छोटा पाथ है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी से एंड पॉइंट ऑफ द जर्नी तक जो सबसे छोटा पाथ है, उस छोटे पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. छोटे से छोटा पाथ, सबसे छोटा पाथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट है. इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा पाथ है, इसका मतलब वो छोटे से छोटा पाथ को खोजने के लिए आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. दैट मीन्स देयर इज डायरेक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन डिस्प्लेसमेंट, विच मेक्स डिस्प्लेसमेंट अ वेक्टर क्वांटिटी. आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का फर्दर डेफिनेशन क्या है. सो इसका सीधा सीधा मतलब यह है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेन एवर बॉडी एक क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहा है, जैसे कि हमने देखा था डिस्टेंस कवर्ड इन क्लोज्ड पाथ हम कैसे निकालते हैं, हमने प्रीवियस पार्ट्स ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. डिस्प्लेसमेंट इन क्लोज्ड पाथ निकालने के लिए अगर बॉडी एक क्लोज्ड पाथ का 1 राउंड कंप्लीट करता है, इसका मतलब यह है कि बॉडी इज रीचिंग इट्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी. वेन एवर द बॉडी इज रीचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी, द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो. एंड व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, द डिस्प्लेसमेंट विल अगेन बी इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मीनिंग यहां पर यह है कि डिस्टेंस अलॉन्ग विथ डायरेक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं बोलूं द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 10 किलोमीटर, ये उसका डिस्टेंस हो गया. सो व्हाट इज द 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड. लेकिन अगर मैं ये बोलूं डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देखिए टुवर्ड्स ईस्ट आ गया यहां पर, मतलब डायरेक्शन की बात हो गई. तो वो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 10 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गई, लेकिन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट. व्हाई इट इज डिस्प्लेसमेंट? Because it has size, that is 10 kilometer, and it has direction, that is east. So displacement को समझने के लिए सिंपल सा आप ये एक ट्रिक लगा सकते हैं कि displacement is nothing but distance along with direction. If you add direction along with distance, distance के पीछे अगर आप direction लगा दोगे तो वो distance नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? Displacement कहलाएगा. I hope ये पॉइंट आप नोट जरूर करेंगे, that displacement is nothing but डिस्टेंस अलॉन्ग विथ डायरेक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ. सो डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ है, इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड सिंस डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, सो द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर्स. सो सिमिलरली एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर्स एंड इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर्स. बहुत ही सिंपल है. जैसा कि डिस्टेंस की यूनिट्स है, बिल्कुल वैसे ही डिस्प्लेसमेंट के भी यूनिट्स है, बिकॉज चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, बोथ आर बेसिकली लेंथ. सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो ऑल्सो. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है. व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो सकता है. व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन डायरेक्शन का इफेक्ट होता है. कैसे होता है आइए देखते हैं. व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज टेकन अलोंग एनी रेफरेंस डायरेक्शन, इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव. क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट कर रहे हो और कोई डायरेक्शन के हिसाब से मेजर कर रहे हो, से सपोज आपको 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये आपका डायरेक्शन है. ए टू बी आपका डायरेक्शन है, ए से लेकर बी तक ये आपका डायरेक्शन है. और आप डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट भी ए टू बी ही कर रहे हो. डायरेक्शन था ए टू बी और डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट भी कर रहे हो आप फ्रॉम ए टू बी. तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. बिकॉज आपकी रेफरेंस डायरेक्शन क्या थी? रेफरेंस डायरेक्शन थी फ्रॉम ए टू बी, और आप मेजरमेंट भी कैसे कर रहे हो? फ्रॉम ए टू बी. तो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी
पॉजिटिव। आपका रेफरेंस डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट का मेजर कर रहे हो फ्रॉम बी टू ए, ऑपोजिट हो गई। ऑपोजिट हो गई इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वहां पर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, एंड इट कैन बी जीरो ऑल्सो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ रेफरेंस डायरेक्शन। रेफरेंस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, उसके ऑपोजिट चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। ए टू बी, अगर आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी चलोगे, डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है, तो बी टू ए मूव करने पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -30, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, +30 टू -30, दैट इज 0। वाई 0? बिकॉज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया 30 मीटर, पॉइंट बी से पॉइंट ए वापस आया -30 मीटर। दैट मीन्स बॉडी इज कमिंग बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस भी किया है, वेनेवर आपका बॉडी किसी पिछले पॉइंट पे वापस आ रहा है, अपने आपके जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से वापस आ रहा है, इट इज कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी, देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विल बी 0, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोस। आई होप ये दोनों चीजें आपने नोट कर ली होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज हाउ कैन डिस्प्लेसमेंट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बारे में जैसे कि मैंने बताया, इसका डिस्क्रिप्शन और अच्छे से डिस्क्राइब मैंने किया हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स वाले वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो। थैंक यू। सो द नेक्स्ट इज आप डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वीडियो में भी दिया हुआ है। सो नेक्स्ट इज वी हैव टू सी द एग्जाम्पल क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड एग्जाम्पल क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं एक टिप देना चाहूंगा आपको कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन जो भी गिवन है उस सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका ऑलमोस्ट सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ जाएगा। यू विल गेट almost 99% there is a chance that you will get correct answer. So most important tip यहाँ पर यही है कि जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो क्वेश्चंस में गिवन जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, राइट। एंड फिगर बनाने के साथ साथ आप ये भी फैक्ट ध्यान में रखिए, जो कि पिछले पार्ट ऑफ द वीडियोस में हमने देखा भी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ पाथ निकालना पड़ेगा, या फिर अगर क्लोज पाथ है तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा 1 कंप्लीट राउंड के लिए। और डिस्प्लेसमेंट इन 1 कंप्लीट राउंड क्या होता है, 0 होता है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और पहला टिप, जैसा कि आपको पता है, आपको क्या बनाना है, वहां पर डायग्राम बनाना है। सो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, बॉडी मूव्स 20 किलोमीटर ईस्ट, टर्न्स टुवर्ड्स साउथ एंड मूव्स 30 किलोमीटर एंड हेड्स टुवर्ड्स 40 किलोमीटर वेस्ट। Find the total distance covered. How far is the object from the starting point? तो जैसे कि मैंने दिया था आपको पहला टिप क्या था, आपको गिवन कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन में क्या बनाना है, फिगर बनाना, राइट, फिगर बनाना है। सो आइए फिगर बनाते हैं। सपोज बॉडी पॉइंट ए से चालू कर रही है अपनी जर्नी। पॉइंट ए से अगर बॉडी अपनी जर्नी चालू कर रही है तो इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक बॉडी मूव किया, कितना मूव किया, 20 किलोमीटर। और आपको अच्छे से पता है ये ईस्ट है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो बॉडी 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है, साउथ ईस्ट से नीचे रहेगा, दैट मीन्स बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ। पॉइंट सी कितना मूव किया टुवर्ड्स साउथ, 30 किलोमीटर। साउथ में मूव करने के बाद बॉडी वेस्ट की तरफ मूव हो गई। वेस्ट की तरफ कितनी मूव हो गई, 40 किलोमीटर्स मूव हो गई। दैट मीन्स ये है 40 किलोमीटर्स, कहाँ तक, पॉइंट ए बी सी डी, पॉइंट डी तक मूव कर गई। एंड सी डी कितना है, सी डी इज 40 मीटर। सो अगर हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाएं, और डॉटेड लाइन जहाँ पर इस मीट कर रहा है, इस पॉइंट को दे देते हैं पॉइंट ई, पॉइंट ई। सो ई सी कितना है, 20, एंड डी ई भी कितना है, ये भी 20 हो गई, बिकॉज सी डी 40 है।
सो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है. यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए, जैसे कि मैंने आपको टिप में भी बताया है, प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो में भी बताया है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिंपली पाथ के लेंथ को प्लस करना पड़ेगा. तो पाथ है A to B, B to C, C to D. A to B हो गया 20, B to C हो गया 30, C to D हो गया 40. तो 20 प्लस 30 प्लस 40 कितना आता है. सो लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड मतलब ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CE, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 90 किलोमीटर्स. ये मैंने रफ फिगर बनाया था, ये रही आपकी एग्जैक्ट फिगर. कुछ ऐसे दिखेगी आपकी फिगर, आपकी बिल्कुल ऐसी. सो total distance covered is equal to 20, the length of the path 20 plus 30 plus 40, that is equal to how much, 90 kilometers. This is the displacement, sorry, this is the distance covered. अब आपको निकालना है how far is the object from the starting point. अब आप बताइए आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है. आपका स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट A. स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट A और आपका एंड ऑफ द जर्नी कहां हो रहा है, पॉइंट E तक हो रहा है. तो आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि E से A तक बॉडी कितना दूर है. दैट मीन्स सेकेंड पार्ट में आपको एक्चुअली क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में आपको एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है. डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ. तो शॉर्टेस्ट पाथ A से लेके E तक कौन सा है, ये लाइन. दिस लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A टू E. और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए हमको रेफर करना पड़ेगा ट्राइंगल ADE. कौन सा है ट्रायंगल ADE, दिस इज ट्रायंगल ADE. ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE इज विच ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE इज राइट एंगल ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ADE विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, AD इक्वल टू कितना हो गया, 30 किलोमीटर. रेक्टेंगल है 30 किलोमीटर. सो ये साइड दैट इज AD, which AD will be equal to 30 kilometer. DE already it is given 20 kilometer. So AE will be equal to square root of 20 square plus 30 square, that is by the use of Pythagoras theorem. So इसको सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा 10 रूट 13 किलोमीटर्स. दिस इज योर आंसर. सो इस क्वेश्चन के दो आंसर है. पहले पार्ट का आंसर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 90 किलोमीटर एंड हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. कभी भी अगर आपको बोलता है दैट मीन्स आपको वो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 10 रूट 13 किलोमीटर्स. I hope you enjoyed doing this question. Let us go for the next question. A body travels in a circular path of radius 100 meter. Circular path, closed figure. याद आ रहा होगा मैंने क्या बताया था आपको. Distance covered in one round equal to circumference of circle and displacement covered in one round will be equal to 0. So आइए देखते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में. How much distance is covered in half rounds? Half rounds में distance निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले वन राउंड का डिस्टेंस निकाल लोगे विच इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/2 से. हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1/4 राउंड्स. 1/4 राउंड्स का डिस्टेंस निकालने के लिए कैसे करेंगे आप, सेम वही चीज, सर्कमफेरेंस निकालिए और सर्कमफेरेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1/4 से. निकल जाएगा आपका डिस्टेंस कवर्ड इन 1/4 राउंड्स. डिस्प्लेसमेंट इन 1/4 राउंड्स, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं. डिस्प्लेसमेंट इन 1/2 राउंड्स भी देखते हैं कैसे निकालते हैं. डिस्प्लेसमेंट इन 1 कंप्लीट राउंड, बताइए इसका आंसर क्या होगा. आपने अभी वीडियो तो देखा ही है, अभी भी मैंने इस टिप को रिपीट किया है. बताइए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 कंप्लीट राउंड क्या होगा, 0. बिल्कुल सही, आंसर इज 0. मजा आया. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स के सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं. सो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो हम एज्यूम करते हैं बॉडी ट्रैवल कर रहा है सी से लेके ए तक, देन ए से लेके बी तक, देन बी से लेके सी तक. इस तरह से बॉडी ट्रैवल कर रहा है क्लॉकवाइज, लाइक दिस एज्यूम कर लेते हैं. व्हाट इज ओसी, ओसी इज द रेडियस. व्हाट इज ओबी, ओबी इज अगेन द रेडियस विच इज इक्वल टू 100 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है. अब आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 राउंड. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 राउंड क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको बॉडी अगर एक क्लोज्ड पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 कंप्लीट राउंड विल बी इक्वल टू 0. वाई 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने के दौरान हमने वहां पर एक पॉइंट भी देखा था कि वेन एवर अ बॉडी रीचेस
back to its starting point, the displacement covered will be equal to 0. So part E का आंसर आपको 0 मिल जाएगा यहां पर. देखिए यहां सॉल्यूशन में भी है. द आंसर फॉर पार्ट E इज 0. डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट राउंड. जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्लोज्ड फिगर है. कोई भी क्लोज्ड फिगर में डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट राउंड इक्वल टू होता है उसका पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr. तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट राउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट राउंड इक्वल टू हो जाएगा सरकमफेरेंस, दैट इज इक्वल टू 2πr. सो 2πr, पाई की वैल्यू डाल दीजिए 3.14 और रेडियस की वैल्यू 100. पूरे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 628 मीटर. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट राउंड. तो अब निकालिए आप डिस्टेंस कवर्ड इन हाफ राउंड्स. कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट राउंड तो हमने निकाल लिया. हाफ राउंड्स का निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस कंप्लीटेड इन वन राउंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1/2 से. तो 628 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आ जाएगा आपका 314. पार्ट ए का आंसर आ गया आपका. पार्ट बी का क्वेश्चन था डिस्टेंस कवर्ड इन 1/4 राउंड्स. अगेन वही सेम चीज. डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट राउंड तो हमने निकाल लिया. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1/4 राउंड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 628 इंटू 1/4. तो आंसर क्या आता है? 157. ये आ गया पार्ट बी का आंसर. अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 1/2 राउंड्स. डिस्प्लेसमेंट इन 1/2 राउंड्स. 1/2 राउंड्स. 1/2 राउंड का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया पॉइंट सी से बॉडी चालू कर रही है, वापस पॉइंट सी पे आ रही है. 1 कंप्लीट राउंड हो गया. फिर से देखें, आइए देखते हैं. पॉइंट सी से बॉडी चालू कर रही है, ट्रैवल कर ली सर्कुलर पाथ में और एक राउंड कंप्लीट कर ली, वापस आ गई पॉइंट सी पे. डिस्प्लेसमेंट हो गई 0 पार्ट ई. लेकिन अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पार्ट डी में. पार्ट डी में हमको ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट इन 1/2 राउंड्स. 1/2 राउंड्स का मतलब पॉइंट सी से बॉडी चालू की, पॉइंट ए तक आई, बस हाफ राउंड्स हो गए. हाफ राउंड्स में बॉडी आई पॉइंट सी से पॉइंट ए तक. तो पॉइंट सी से पॉइंट ए तक अगर बॉडी आ रही है तो पॉइंट सी से पॉइंट ए तक आने के लिए बॉडी के पास 2 पाथ है. एक ये सर्कुलर पाथ और एक ये डायरेक्ट ये वाला पाथ, डायमीटर वाला पाथ. पॉइंट सी से लेके पॉइंट ए तक हाफ राउंड कंप्लीट हो रहा है. पॉइंट सी से लेके पॉइंट ए तक हाफ राउंड कंप्लीट हो रहा है. तो पॉइंट सी से लेके पॉइंट ए के बीच में 2 पाथ मिल रहे हैं आपको. कौन कौन से 2 पाथ? एक पाथ मिल रहा है C2A ये वाला सर्कल वाला, और दूसरा पाथ मिल रहा है C2A ये स्ट्रेट वाला. अब आप बताइए दोनों में से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? बिकॉज मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? इन दोनों और इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ आपको साफ दिख रहा है. इट इज दिस लाइन, दिस ब्लैक लाइन. दिस ब्लैक लाइन इज योर शॉर्टेस्ट पाथ. सो द ब्लैक लाइन आपका शॉर्टेस्ट पाथ है. इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ कितना होगा? ऑब्वियसली बात है ये शॉर्टेस्ट पाथ जो दिख रहा है आपको AC, ये कुछ भी नहीं है, ये डायामीटर है सर्कल का. तो डायमीटर कितना हो गया? रेडियस 100 है तो डायमीटर कितना हो गया? 100 + 100 विच इज इक्वल टू 200 मीटर. आ गया पॉइंट डी का आंसर, पार्ट डी का आंसर. हाफ राउंड्स में बॉडी पॉइंट सी से लेके पॉइंट ए तक आई. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है AC विच इज द डायमीटर. रेडियस वॉज 100 तो डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 × 100 विच इज इक्वल टू 200 मीटर. दैट इज पार्ट डी. अब आते हैं द लास्ट मेंशन्ड पार्ट जो कि बचा हुआ है हमारे पास, वो है डिस्प्लेसमेंट इन 1/4 राउंड्स. थोड़ा सा टिपिकल है. 1/4 राउंड्स कैसे होगा? 1/4 राउंड का मतलब ये है कि सपोज बॉडी अगर मूव कर रही है ऐसे, तो 1/4 इसका 1 कंप्लीट राउंड कैसे होगा? पॉइंट सी से पॉइंट सी 1 कंप्लीट राउंड. हाफ राउंड कैसे हो जाएगा? C2A जो कि हमने देखा भी अभी. 1/4 राउंड मतलब हाफ राउंड का हाफ. हाफ राउंड का हाफ मतलब C2B. आ गए हम C2B में. दैट मीन्स बॉडी अगर C से लेके B तक या B से लेके C तक जाता है तो ही हम बोलेंगे कि बॉडी ने क्या कवर किया है? सिर्फ हाफ राउंड्स का हाफ कवर किया है. दैट इज 1/4 राउंड्स कवर किया है यहां पर बॉडी ने. सो 1/4 राउंड्स कवर किया है बॉडी ने. इसको निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बॉडी ने शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा कवर किया है. तो आइए देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा कवर किया है. सो हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट B टू C. B से लेके C तक का डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है.
सो बी से लेके सी तक का डिस्प्लेसमेंट अगर हमको निकालना है तो हमको देखना पड़ेगा कि बी से लेके सी तक कौन कौन से दो पाथ है हमारे पास। बी से लेके सी तक दो पाथ है, एक पाथ है ये आर्क बीसी, एंड दूसरा पाथ है ये डॉटेड लाइन बी से लेके सी। दो पाथ मिल गए हमारे। अब ये डॉटेड लाइन और ये आर्क में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ऑब्वियसली बात है ये डॉटेड लाइन है। सो ये डॉटेड लाइन क्या है? ये डॉटेड लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो यही डॉटेड लाइन ही आपका डिस्प्लेसमेंट है। सो यही डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप गौर कीजिए, यहां पर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल OBC is which triangle? Triangle OBC is a right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब आपको BC निकालना है, विच इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1/4 राउंड्स, और ये BC क्या है? उसका हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, जो कि आपने पिछले क्वेश्चन में लगाया भी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब हो गया 100 स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर भी हो गया 100 स्क्वायर। सो BC इक्वल टू हाउ मच? BC इक्वल टू 100√2 मीटर। 100√2 मीटर। आप चाहें तो √2 की वैल्यू डाल दीजिए। √2 की वैल्यू है 1.41। 1.41 इंटू 100 अगर आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 141 मीटर। 141 मीटर 141 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट इन 1/4 राउंड्स। 1/4 राउंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है आपका, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 141 मीटर, और यू कैन राइट 100√2 मीटर। सो आई होप आपको ये वीडियोस में जो दोनों क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने में मजा आया होगा, एंड आपको कुछ अच्छा सीखने भी मिला होगा। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ माई चैनल मेक्स यू लर्न समथिंग गुड। सो आइए देखते हैं एक तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्स अराउंड द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 40 मीटर। एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, स्क्वायर शेप का फील्ड है, और एक आदमी इस स्क्वायर शेप के फील्ड के साइड में वॉक कर रहा है। मतलब ये जो रेड कलर के लाइंस आपको दिख रही है, रेड कलर के बॉर्डर में आपका ये पर्सन है, ये मूव कर रहा है। आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 राउंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2.5 राउंड्स। आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 राउंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2.5 राउंड्स। एंड ये क्वेश्चन, जैसा कि वीडियो भी आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, ट्राई कीजिए, एंड इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में नीचे। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, आप इसका आंसर सॉल्व करके मुझे बता सकते हैं। आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन भी बता सकते हैं मुझे। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप इसका सॉल्यूशन सहित इसका आंसर बताएं, बिकॉज ये बताएगा कि आपने इस वीडियो को कितना समझा है। सो वेदर करेक्ट वेदर रॉन्ग, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, एंड योर ऑल आंसर्स आर वेलकम। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आई होप आपको ये वीडियो मजा आया होगा। यू शुड हैव लर्न समथिंग गुड। सो फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड टू Techify Physics, the online learning center for learning physics, and subscribe, like, and share.